Hello students, welcome to the English class. Students, in earlier class we have completed the reading portion of chapter 4, The Ant and the Dove. So today in this class we will be doing book exercises of this chapter. So be ready for it. Take out page number 39 of your English reader. Shall we start now? A. Complete the following. One has been done for you. So students, what you have to do, यहाँ पर आपको blanks दिखाई देगा अपनी बुक में. ये मैंने कर दिया है. I have already done this. बट आपकी बुक में यहाँ पर blank होगा. और जो एक ये this one, ये already आपको given है, ये दिया हुआ है. So बाकी आपको fill करना है. Number 1. Looked for food on the river bank. नदी के किनारे कौन अपना खाना ढूंढ रहा था? Who was looking for the food? Yes, the right answer is the ant. Next one, plucked off a leaf. Who plucked off a leaf? पत्ती किसने तोड़ी? Right answer is the dove. Plucked off a leaf. Next one, wanted to shoot the dove. Now tell me, who wanted to shoot the dove? Dove को कौन shoot करना चाहता था? Yes, the right answer is the hunter wanted to shoot the dove. So complete this one. Now move to the next B number. Match the words with their meanings. So students, look at the screen. There are two columns. These are words and these are meaning of these words. So what you have to do, you have to match them with numbers. आपको numbers से इनको match करना है. Don't draw the lines, okay? Line draw नहीं करनी है. So number 1 is struggle. The meaning of struggle is try very hard, यानी बहुत अधिक कोशिश करना. Number 2, grateful. Grateful means thankful, यानी आभारी होना. Number 3, inseparable. Inseparable means always together, जो हमेशा साथ रहते हैं. हमेशा साथ रहना. Number 4, spotted. Spotted means saw, देखा. Number 5, beast. Beast means animal. Clear? Now move to the next one. C number. Answer the following questions. Number 1 is, what happened to the ant? Ant के साथ क्या हुआ? क्या हुआ ant के साथ? Ant को हवा ने उड़ाकर नदी के पानी में डाल दिया था. So the answer number 1 is, a strong wind blew the ant into a river. एक बहुत तेज हवा ने एंट को उड़ाकर नदी में डाल दिया था, यानी वो हवा से उड़कर नदी में गिर गई थी. Now question number 2, how did the dove help the ant? डव ने एंट की किस प्रकार से मदद की? एंट मीन्स चींटी. चींटी की किस प्रकार से मदद की? The answer is, the dove plucked off a leaf and threw it into the river near the ant. डव ने एक पत्ते को तोड़ा और उसे नदी में एंट के पास फेंक दिया. Now question number 3, what did the ant do when he saw the hunter take aim? जब शिकारी निशाना लगा रहा था, उसे लगाते हुए देखा एंट ने, तो क्या किया? The right answer is, the ant quickly crawled inside the hunter's boots and stung his ankle. Ant जल्दी से हंटर की बूट के अंदर चली गई और उसने उसके एंकल में डंक मार दिया. Now question number 4, can you think of a moral for this story? Write it down. क्या आप इस स्टोरी का मोरल सोच सकते हैं? यानी इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है?
तो आपको यहाँ पर मोरल लिखना है कि आपने इससे क्या सीखा। द आंसर इज we should always help others in whatever way we can. हमें हमेशा ही दूसरों की मदद करनी चाहिए जिस प्रकार भी हम कर सकते हैं, यानी जो भी साधन हमें मिले उससे दूसरों की मदद करनी चाहिए। Now move to the next. Grammar glee. Do you remember when to use he, she, I, they, we, my and it? Now students tell me, आपको याद है ना, ये हम पहले कर चुके हैं पहले की क्लासेस में। These words are used instead of repeating the noun. These are called pronouns. जो ये सारे वर्ड हैं ये हम नाउन की प्लेस पर यूज़ करते हैं। किस लिए? जिससे कि नाउन का बार बार रिपीटिशन ना हो। क्लियर? एंड these are called pronouns. So pronouns means the word which is used in place of noun. Clear? Fill in the blanks with the correct pronoun. अब आपको ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको करेक्ट प्रोनाउन से फिल करना है। आई हैव ऑलरेडी डन दिस फॉर यू, मैंने पहले ही कर लिया है, पर आपको इसे समझना ज़रूरी है। क्लियर? नंबर 1, शीना इज़ ऑन हर वे टू स्कूल। शीना स्कूल जा रही है, स्कूल रास्ते में है। अब शीना क्या है? शीना इज़ अ गर्ल, गर्ल है, और गर्ल के लिए क्या यूज़ होता है? ही और शी। शी, गर्ल के लिए शी यूज़ होता है एंड बॉय के लिए ही यूज़ होता है। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शी यूजेस द बस टू रीच स्कूल। वह स्कूल पहुँचने के लिए बस का यूज़ करती है, यानी बस से जाती है। नंबर 2, माइकल विल नॉट बी प्लेइंग टुडे। माइकल आज नहीं खेलेगा। अब माइकल क्या है? माइकल इज़ अ boy or male. So what we will use here? He isn't well. वह ठीक नहीं है, यानी वह बीमार है। नंबर 3, नीता एंड मोना आर फ्रेंड्स। नीता और मोना दोस्त हैं। डैश आर क्लासमेट्स। अब यहाँ पर हम दोबारा से नीता एंड मोना नहीं लिखेंगे। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दे। दे मीन्स होता है वे। दे आर क्लासमेट्स, वे क्लासमेट्स हैं। नंबर 4, आई हैव अ बिग बलून। मेरे पास एक बड़ा बलून है। डैश इज़ रेड इन कलर। अब यहाँ पे ना हमने शी यूज़ किया ना ही। क्यों? क्योंकि जो बलून है ये एक थिंग है, चीज़ है ये कोई, और ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे इट। इट इज़ रेड इन कलर। Now next one, 5 number. नितिन and I stay close by. नितिन और मैं पास रहते हैं। Dash are neighbors. अब नितिन एंड आई, तो अगली लाइन में क्या होना चाहिए? हम पड़ोसी हैं, तो हम के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? वी आर नेबर्स, हम पड़ोसी हैं। नंबर 6, इज़ दैट टीनाज बैग। क्या ये टीना का बैग है? डैश हैज़ लेफ्ट डैश हियर। डैश वह इसे यहाँ छोड़ गई है। सो शी, टीना इज अ गर्ल, सो वी विल यूज हियर शी हैज लेफ्ट इट। इट किसके लिए यूज किया गया? बैग के लिए। इट हियर, वह इसे यहाँ छोड़ गई है। क्लियर? नाउ 7 नंबर, मोना एंड आई आर नेबर्स। मोना और मैं नेबर्स हैं, यानी पड़ोसी हैं। डैश लाइक टू प्ले टुगेदर, हम साथ खेलना पसंद करते हैं, तो हम के लिए क्या यूज़ होगा? वी लाइक टू प्ले टुगेदर। 8 नंबर, डैश सिस्टर एंड डैश शेयर ऑल आर टॉयज। माई सिस्टर, मेरी बहन और मैं हमारे सारे खिलौने शेयर करते हैं। So students, complete this one. Now move to the next. Word building. Gender.
डू यू नो व्हाट इज जेंडर? हम ग्रामर बुक में आगे के चैप्टर में हम जेंडर करेंगे, अभी हमने नहीं किया है, बट हमने हिंदी में किया है। याद है आपको? लिंग, लिंग जो है वो जेंडर होता है इंग्लिश में। क्लियर? और लिंग कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग, मेल एंड फीमेल। सो अ नाउन इज said to be in the masculine gender if it refers to a male and the feminine gender if it refers to a female। जब किसी नाउन से ये पता चलता है कि वह किसी मेल के बारे में बता रहा है तो मैस्कुलिन जेंडर होगा, और अगर उससे हमें पता चलता है किसी फीमेल के बारे में बता रहा है तो वो फेमिनिन जेंडर होगा, यानी मेल पुल्लिंग, फीमेल स्त्रीलिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? Given below are some masculine and feminine gender words. Join the words in the two columns to form correct pairs. नीचे देखिए, there are two columns. ये क्या है? ये masculine gender है and these are feminine gender. So what we have to do? We have to match them. हमको इनको मैच करना है और इनके पेयर बनाने यानी जोड़े बनाने हैं। सो नंबर 1 इज बॉय। अब बॉय का फीमेल क्या होगा? गर्ल। क्लियर? प्रिंस, प्रिंस का क्या होगा? प्रिंसेस। लायन, लायन का लायनेस। नंबर 4 हस्बैंड, हस्बैंड का क्या होगा? वाइफ। नंबर 5 पिकॉक, पिकॉक का पीहन। अगर मेल होगा तो पिकॉक एंड फीमेल होगी तो पीहन। 6 नंबर जेंटलमैन, जेंटलमैन का लेडी। बुल, बुल मीन्स होता है बैल। काव। नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स भतीजा या भांजा। नीस, नीस मीन्स भतीजी या भांजी। नंबर 9 एक्टर, और फीमेल होगी तो एक्ट्रेस। 10 नंबर सर and female madam. So students, complete this work, page number 39, 40 and 41. Okay, now we'll meet again in next class. Enjoy learning. Thank you.